بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن۔ میانمار میں فوجی بغاوت، آنگ سان سوچی اور دوسرے لیڈرز گرفتار، 1 سال کے لیے ایمرجنسی لگا دی گئی۔ فوج نے کہا الیکشنز میں دھاندلیاں ہوئی ہیں، 1 سال میں صاف ستھرے چناؤ کرائیں گے۔ فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کریں، گرفتاری سے پہلے عوام کے لیے سوچی کا پیام۔ کئی ملکوں نے کی فوجی بغاوت کی مذمت، تھائی لینڈ اور انڈونیشیا میں سڑکوں پر مظاہرے۔ ایران نے امریکہ سے بات چیت سے انکار کر دیا، کہا پہلے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ کووڈ دور کا پہلا بجٹ پارلیمنٹ میں پیش، ویکسین اور ہیلتھ سیکٹر پر خاص توجہ۔ نرملا کے بجٹ میں زراعت کے لیے بڑی رقم الاٹ، سینئر سٹیزنز کو راحت، ٹیکس ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ عام آدمی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، مودی کا دعویٰ، چدمبرم نے کہا غریبوں اور مائیگرنٹس کے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ انڈیا کے کووڈ کیسوں میں 11,500 کا اضافہ، پاکستان میں چہارشنبے کو شروع ہوگی ویکسینیشن مہم۔ کنگز گروپ آف کمپنیز اور پیئرس عزیز کنسٹرکشنز کی ایک اور فخریہ پیشکش، کنگز معاون ارینا، آرام گڑھ پلر نمبر 307 پر واقع 3 اور 4 BHK کے لگژری فلیٹس، 30% ڈاؤن پیمنٹ اور 70% ایزی انسٹالمنٹ، بینک لون اپرووڈ پروجیکٹ، سوئمنگ پول، والی بال، جاگنگ پارک، ٹیبل ٹینس، جم، چلڈرنز پلے پارک آپ کے خواہشوں کی پوری تکمیل کرے گا۔ کنگز معاون ارینا، پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کنگز ڈریم ویو سٹی، شہر حیدرآباد کے بیچوں بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر، چندرائن گٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر، ایٹ کارگو ایئرپورٹ روڈ، گیٹڈ کمیونٹی، واٹر پائپ لائن، ڈرینیج، الیکٹریسٹی BT روڈ سے آراستہ، HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، آپ کے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر، ایک پیور فضا اور خوشگوار ماحول میں۔ اب بنائیں اپنا خود کا گھر، پلاٹ خریدیں، رجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں۔ پیئرس عزیز کنسٹرکشنز، اپوزٹ ریلائنس مارٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ میانمار یا برما کی فوج نے جمہوری حکومت کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور سویلین لیڈر آنگ سان سوچی اور دوسرے وزیروں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بغاوت کے بعد پورے اختیارات فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے حوالے کر دیے گئے اور 1 سال کے لیے ایمرجنسی لگا دی گئی۔ سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ اعلان کیا گیا۔ حالیہ الیکشنز میں آنگ سان سوچی کی پارٹی نے زبردست کامیابی حاصل کی تھی، لیکن فوج نے الیکشنز میں دھاندلیوں کا الزام لگایا تھا۔ آنگ سان سوچی نے گرفتاری سے پہلے اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ فوجی بغاوت کے خلاف احتجاج کریں اور اسے قبول نہ کریں۔ اپنی گرفتاری کا اندازہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک پیام میں کہا کہ فوج کی کارروائیوں سے ملک دوبارہ ڈکٹیٹرشپ کی طرف چلا جائے گا۔ میانمار یا برما 2011 تک فوج کے زیر اقتدار تھا اور جمہوریت پسند لیڈر آنگ سان سوچی کی قیادت میں ایک تحریک کے بعد فوجی حکومت ختم ہوئی تھی۔ انہوں نے 1989 سے 2010 تک 15 سال جیل میں گزارے۔ دنیا بھر میں انہیں جمہوریت کی چیمپئن کی حیثیت حاصل تھی اور انہیں 1991 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا، لیکن آنگ سان سوچی نے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف زیادتیوں کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے روہنگیوں کے قتل عام اور انہیں بے گھر کرنے کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا، جس کی وجہ سے کئی گوشوں کی طرف سے ان کا نوبل انعام چھیننے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ آنگ سان سوچی بعض قانونی مجبوریوں کی وجہ سے باقاعدہ ملک کی لیڈر نہیں بنی، لیکن عملاً انہیں حکمراں کی حیثیت حاصل تھی۔
फौज ने इल्जाम लगाया कि आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने बड़े पैमाने पर इलेक्शंस में धांधलियां की हैं। फौज और हुकूमत के दरमियान तनाव उस वक्त बढ़ा जब एक फौजी जनरल ने उनकी तकरीर में वार्निंग दी थी कि अगर म्यांमार के दस्तूर का एहतराम नहीं किया गया तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। आंग सान सूची ने रोहिंग्यों के खिलाफ फौज की कार्रवाइयों का यूनाइटेड नेशंस की अदालत में बचाव किया था। दिसंबर 2019 में हेग की आलमी अदालत में उन्हें बुलाया गया था, जिसमें उन्होंने रोहिंग्यों के खिलाफ कार्रवाइयों को दुरुस्त ठहराया था। फौजी बगावत के बाद दारुल हुकूमत नैपीता की सड़कों पर हर तरफ सिपाहियों को तैनात कर दिया गया। यांगून शहर में भी फौज गश्त कर रही है। फौज ने कहा कि वो नए इलेक्शंस कराएगी और जीतने वाली पार्टी को हुकूमत हवाले करेगी। फौज की तरफ से जारी एक हुक्म में कहा गया कि हम एक ऐसी पार्टी को इख्तिदार सौंपेंगे जो साफ सुथरे इलेक्शंस में कामयाबी हासिल करेगी और हम हकीकी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी लाएंगे। आंग सान सूची के अलावा सदर वेन मिंग और दूसरे सीनियर ओहदेदारों को भी हिरासत में ले लिया गया। फौज के टेलीविजन चैनल पर जारी एक वीडियो में कहा गया कि इख्तिदार सीनियर जनरल सिंह ऑनलाइन के हवाले कर दिया गया है, जो फौजों के कमांडर इन चीफ हैं। इसके लिए नवंबर के इलेक्शंस में बड़े पैमाने पर धांधलियों को वजह बताया गया। आलमी सतह पर म्यांमार में फौजी बगावत की मजम्मत की जा रही है, जिनमें यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका और दूसरे बड़े मुल्क शामिल है। चाइना ने उम्मीद जाहिर की है कि तमाम फरीक इख्तलाफात हल करेंगे। चाइना की वजारत खारजा की तर्जुमान ने अपनी ब्रीफिंग के दौरान बीजिंग में कहा कि दस्तूर और कानूनी फ्रेमवर्क के तहत इख्तलाफात हल किए जाने चाहिए और इस्तेहकाम लाना चाहिए। बांग्लादेश ने म्यांमार में अमन और इस्तेहकाम की ज़रूरत पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने म्यांमार में फौजी बगावत पर फिक्रमंदी का इजहार किया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन की तर्जुमान ने कहा कि वाशिंगटन को इन खबरों पर तशवीश है कि म्यांमार में फौजी बगावत की गई है और आंग सान सूची और दूसरे सिविलियन लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर की तर्जुमान जेन साकी ने एक बयान में कहा कि अमेरिका इलेक्शंस के नतीजों से छेड़छाड़ की किसी भी कोशिश की मुखालफत करता है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी एक बयान में तशवीश का इजहार किया और फौज से कहा कि वो अपनी कार्रवाई फौरी वापस ले। यूरोपीय काउंसिल के सदर चार्ल्स माइकल ने फौजी बगावत की मजम्मत करते हुए मुतालबा किया कि गिरफ्तार किए गए तमाम लीडर्स को रिहा किया जाए। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने सिविलियन लीडर्स की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा कि तमाम इख्तियारात फौज को वापस कर देना चाहिए। इंडिया ने भी म्यांमार में फौजी बगावत पर फिक्रमंदी का इजहार किया। वजारत खारजा ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा म्यांमार में जमहूरी हुकूमत की हौसला अफजाई करता रहा है। हमारा मानना है कि फौज की हुक्मरानी और जमहूरी अमल से छेड़छाड़ गलत है और जमहूरी अमल को सरबुलंद रखना चाहिए। हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने फौजी बगावत की मजम्मत की और कहा कि अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए और सिविलियन लीडर्स को रिहा करना चाहिए। जापान ने कहा कि वो म्यांमार में जमहूरियत की तायद करता है। फिलिपाइन ने कहा कि म्यांमार के शहरियों की हिफाजत और सलामती को अहमियत देनी चाहिए। इंडोनेशिया ने जमहूरी उसूलों पर अमल की ज़रूरत पर जोर दिया। मलेशिया ने फौज से कहा कि वो अमन और इस्तेहकाम को अहमियत दे। ह्यूमन राइट्स वॉच ने आंग सान सूची और दूसरे लीडर्स को रिहा करने का मुतालबा किया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि फौजी बगावत पर म्यांमार के खिलाफ पाबंदियां लगानी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गिरफ्तारियों पर फिक्रमंदी का इजहार किया। थाईलैंड में म्यांमार की फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करते हुए लोग सड़कों पर निकल आए। इस मौके पर एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें हुई। आसियान तंजीम ने बातचीत के जरिए मसाइल हल करने और जमहूरियत बहाल करने पर जोर दिया। 10 मुल्कों की तंजीम आसियान ने एक बयान में कहा कि आसियान के रुकन मुल्क एक पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल आसियान कम्युनिटी के हामी हैं। टोक्यो और बैंकॉक में भी बगावत के खिलाफ मुजाहरे किए गए। दुनिया भर से वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ, खासतौर पर मिडल ईस्ट की खबरों और बजट की खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़ 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। म्यांमार में फौजी बगावत, आंग सांग सूची और दूसरे लीडर्स गिरफ्तार, 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई। फौज ने कहा इलेक्शंस में धांधलियां हुई हैं, 1 साल में साफ सुथरे चुनाव कराएंगे। फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करें, गिरफ्तारी से पहले अवाम के लिए सूची का पैगाम। कई मुल्कों ने की फौजी बगावत की मजम्मत, थाईलैंड और इंडोनेशिया में सड़कों पर मुजाहरे। ईरान ने अमेरिका से बातचीत से इनकार कर दिया, कहा पहले पाबंदियां हटाई जाएं। कोविड दौर का पहला बजट पार्लियामेंट में पेश, वैक्सीन और हेल्थ सेक्टर पर खास तवज्जो। निर्मला के बजट में ज़राअत के लिए बड़ी रकम अलॉट, सीनियर सिटीजन्स को राहत, टैक्स ढांचे में कोई तब्दीली नहीं। आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया, मोदी का दावा। चिदंबरम ने कहा गरीबों और माइग्रेंट्स के साथ धोखा किया गया। इंडिया के कोविड केसों में 11,500 का इजाफा, पाकिस्तान में चारशंबे को शुरू होगी वैक्सीनेशन मुहिम। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। शुरुआत में मिडल ईस्ट, ईरान ने पाबंदियां बर्खास्त करने तक अमेरिका के साथ किसी बातचीत के इम्कान से इनकार किया। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका के साथ आपसी बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरानी तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका को पहले अपने वादे पूरे करने चाहिए और अगर ऐसा हुआ तभी न्यूक्लियर डील के फ्रेमवर्क के तहत बातचीत मुमकिन हो सकती है। 2018 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील JCPOA को तोड़ दिया था और ईरान के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी अपनाई थी। इसके खिलाफ कई पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन ईरान ने ज्यादा से ज्यादा दबाव की पॉलिसी के जवाब में ज्यादा से ज्यादा मुजाहमत की पॉलिसी अपनाई। ईरानी तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा कि सबसे पहले अमेरिका को पाबंदियां हटाना चाहिए और सिक्योरिटी काउंसिल की एक करारदाद 2236 पर अमल करना चाहिए। इसके बाद ही न्यूक्लियर डील में शामिल हुआ जा सकता है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन शुरू से न्यूक्लियर डील बर्खास्त करने पर तनकीदें करते रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो समझौता बहाल करेंगे, लेकिन 20 जनवरी को हलफ लेने के बाद से अब तक इस सिलसिले में उन्होंने कुछ नहीं किया है।
ایران میں اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کا 10 روزہ جشن شروع ہوا ہے۔ اس انقلاب میں امریکہ کی تائید رکھنے والی رضا شاہ پہلوی کی شاہی حکومت کا تختہ پلٹ دیا گیا تھا۔ اتوار کو یہ سالانہ جشن شروع ہوا۔ 42 سال پہلے 1979 میں امام خمینی نے فرانس میں جلا وطنی ختم کرتے ہوئے تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترنے کا فیصلہ کیا تھا، اور جب وہ ایئرپورٹ پر اترے لاکھوں ایرانی سڑکوں پر ان کے استقبال کے لیے امڑ آئے تھے اور اس وقت کا بادشاہ فرار ہو گیا تھا۔ سیریا کی باغیوں کے کنٹرول والے علاقے میں 3 دھماکے ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ان دھماکوں میں بعض لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ مرنے والوں اور زخمیوں میں سویلینز اور ملیٹنٹس دونوں شامل ہیں۔ نیٹو نے کہا ہے کہ وہ مئی کے بعد افغانستان سے اپنے سپاہیوں کو نہیں ہٹائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ ایک سمجھوتہ کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ مئی تک تمام امریکی فوجیوں کو باہر نکالا جائے گا، لیکن بائیڈن حکومت اس منصوبے پر دوبارہ غور کر رہی ہے۔ نیٹو نے کہا ہے کہ فوجیوں کو واپس بلانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اسرائیلی آباد کاروں اور فلسطینیوں کے درمیان سلفیت علاقے میں جھڑپیں ہوئیں۔ یہ جھڑپیں اس وقت ہوئیں جب یہودی آباد کاروں نے فلسطینی بستیوں پر حملہ بول دیا۔ انہیں اسرائیلی فوج کی مدد حاصل تھی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ رشیا میں اپوزیشن لیڈر الیکسی نوالنی کے 5000 سے زیادہ حامیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پورے رشیا میں اپوزیشن کارکن سڑکوں پر نکل آئے اور الیکسی نوالنی کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ کئی شہروں میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ بات کرتے ہیں انڈیا کے بجٹ کی۔ مرکزی حکومت کے نئے بجٹ میں ویکسینیشن اور ہیلتھ سیکٹر اور کسانوں پر خاص توجہ دی گئی اور 75 سال سے زیادہ عمر کے سینئر سٹیزنز کے لیے راحت کا اعلان کیا گیا۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے اپنا پہلا ڈیجیٹل بجٹ پیش کیا، جس میں آتم نربھر بھارت کو بھی کافی اہمیت دی گئی۔ وزیر فائنانس نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسانوں کی بھلائی کی پابند ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایم ایس پی سسٹم کو مضبوط کیا جائے گا، کسانوں کی آمدن میں اضافے کو یقینی بنایا جائے گا۔ 75 سال سے زیادہ عمر کے سینئر سٹیزنز اور صرف پینشن کی آمدنی رکھنے والوں کو انکم ٹیکس ریٹرنز داخل کرنے سے چھوٹ دی گئی ہے۔ مالی سال 2021-22 کا بجٹ پیش کرتے ہوئے مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے کہا کہ پچھلے 6 برسوں میں دھان، گیہوں، دال اور کپاس جیسی فصلیں حکومت کی طرف سے خریدنے کی شرح میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس سال انکم ٹیکس سلیب میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ویکسینیشن کے لیے 35,000 کروڑ روپے الاٹ کیے گئے۔ ہیلتھ سیکٹر کے لیے 2,23,446 کروڑ روپے الاٹ کیے گئے۔ بجٹ میں سرمایہ مصارف کو بڑھا کر 5.5 لاکھ کروڑ روپے کر دیا گیا۔ صحت کے بجٹ میں 137% کا اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کی آتم نربھر سوستھ بھارت یوجنا کے لیے 64,180 کروڑ روپے الاٹ کیے گئے۔ انشورنس کمپنیوں میں ایف ڈی آئی کی لمٹ 49% سے بڑھا کر 74% کر دی گئی۔ زرعی کریڈٹ ٹارگٹ کو بڑھا کر 16.5 لاکھ کروڑ کیا گیا۔ 2.86 کروڑ گھروں کو اگلے 5 سال میں نل کا کنیکشن دینے کے لیے جل جیون مشن شروع کیا جائے گا۔ بجٹ کے بعد جو چیزیں مہنگی ہو جائیں گی ان میں سونا، چاندی، لوہا، انشورنس، سلک اور کاٹن شامل ہیں۔ جو چیزیں سستی ہوں گی ان میں ریفریجریٹرز اور ایئر کنڈیشنرز کے پرزے، کمپریسرز، LED بلبز وغیرہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ سولار انورٹرز، موبائل فون کے پارٹس وغیرہ بھی سستے ہوں گے۔ I would like to say that the investment on health infrastructure in this budget has increased substantially. Progressively, as institutions absorb more, we shall commit more. Taking a holistic approach to health, we focus on strengthening 3 areas: preventive, curative, and well-being. I propose to amend the Insurance Act 1938 to increase the permissible FDI limit from 49% to 74% in insurance companies and allow foreign ownership and control with safeguards.
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमण के बजट की तारीफ की और कहा कि आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया। उन्होंने कहा कि गैर मामूली हालात में ये बजट पेश किया गया है जिससे हिंदुस्तान के एतमाद में इजाफा होगा। बजट में आत्मनिर्भर विजन को मद्देनजर रखा गया और समाज के हर तबके को साथ लेकर चला गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बजट में किसानों की आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो दी गई और इस सिलसिले में कई कदम उठाए गए और अब किसानों को आसानी से कर्ज हासिल होगा। ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। बजट की पेशकशी के बाद पेट्रोल, डीजल और शराब की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं आई। रेल बजट के मुताबिक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा और टूरिस्टों के लिए फैंसी कोचेस शुरू किए जाएंगे। साबिक मरकजी वजीर फाइनेंस और कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने इल्जाम लगाया कि निर्मला सीतारमण ने गरीबों और माइग्रेंट्स के साथ धोखा किया है। अब बात कोविड की। इंडिया के कोविड-19 केसों में 11,427 का इजाफा हुआ है। एक दिन पहले की बनिस्बत ये केसेस 12% कम है। वजारत सेहत के अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 118 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 टीका अंदाजी जारी है। पाकिस्तान में 3 फरवरी यानी 4 शंबे को कोरोना वायरस वैक्सीनेशन शुरू होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह ऐलान किया। उन्होंने बताया कि वैक्सीन का पहला स्टॉक चाइना से पहुंच गया है। ये वैक्सीन चाइना की तरफ से तोहफा है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। म्यांमार में फौजी बगावत, आंग सांग सूची और दूसरे लीडर्स गिरफ्तार। 1 साल के लिए इमरजेंसी लगा दी गई। फौज ने कहा इलेक्शंस में धांधलियां हुई हैं, 1 साल में साफ सुथरे चुनाव कराएंगे। फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करें, गिरफ्तारी से पहले अवाम के लिए सूची का पैगाम। कई मुल्कों ने की फौजी बगावत की मजम्मत। थाईलैंड और इंडोनेशिया में सड़कों पर मुजाहरे। ईरान ने अमेरिका से बातचीत से इनकार कर दिया, कहा पहले पाबंदियां हटाई जाएं। कोविड दौर का पहला बजट पार्लियामेंट में पेश। वैक्सीन और हेल्थ सेक्टर पर खास तवज्जो।
निर्मला के बजट में ज़राअत के लिए बड़ी रकम अलॉट, सीनियर सिटीजन्स को राहत, टैक्स ढांचे में कोई तब्दीली नहीं। आम आदमी पर कोई बोझ नहीं डाला गया, मोदी का दावा। चिदंबरम ने कहा गरीबों और माइग्रेंट्स के साथ धोखा किया गया। इंडिया के कोविड केसों में 11,500 का इजाफा, पाकिस्तान में चारशंबे को शुरू होगी वैक्सीनेशन मुहिम। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।